Is being happening with children, with women, and the time has come for us to take cognizance that this impacts in a far more far-reaching way than we ever imagined. Our prayers for the young lady who's battling for her life, with great, we say this with great admiration and regard for her spirit and her courage for trying to overcome this kind of tragedy that has impacted on her. So we continue praying for her quick recovery and for her to continue being stable. And the government has come forward to say that they will do whatever it takes. Chief Minister Delhi has also said that she will have her flown anywhere if need be regarding her future treatment. Mr. Ghulam Nabi Azad, Health Minister, went personally to meet with the family and speak with them, as did many other celebrities and distinguished people, as you are aware, who have been expressing their solidarity. And my personal admiration for all the young people who are keeping vigil at India Gate, and for all the young people who have been emailing us and getting online and telling us. My hats off to all the young people who have taken up cudgels on behalf of this young lady. And yes, I think all of us together collectively will make this place a safer place for all of us as citizens. किसका कसूर है ये? अमूमन दिल्ली में जब भी क्राइम होता है कहा जाता है कि दिल्ली सीएम का कसूर नहीं है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उनके पास नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर भी कांग्रेस की केंद्र सरकार के पास है। बक कहाँ जाके रुकते? वेयर डज द बक स्टॉप? हर बार यही होता है कि प्रदर्शन। आई डोंट थिंक दिस इज जस्ट अ टाइम फॉर अस टू पॉइंट फिंगर्स। मैं समझती हूँ कि सबकी जिम्मेदारी बनती है, एक सरकारी जिम्मेदारी होती है, एक सामाजिक जिम्मेदारी भी बनती है कि ऐसे लोगों को फिर हम सामाजिक तौर से इनको बॉयकॉट भी करें। इन्हीं लोगों को फिर त्यौहार में बुलाए जाते हैं, शादियों में बुलाए जाते हैं, घर के गृह प्रवेश पे भी बुलाए जाते हैं। जब हम कोई बीमार आदमी को घर पे नहीं बुलाते हैं, ऐसे लोग, ऐसे राक्षस को हम घर पे क्यों स्वागत करते हैं, क्यों चुप रहते हैं? हाँ, ये भी बड़ी अफसोस की बात है। मैं चाहती हूँ कि इलेक्शन कमीशन इसका कॉग्निसेंस ले और देखें कि जो ऐसे अपराध में कोई प्रोसिक्यूट होते हैं, इनको तो जमहूरियत में लड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। रेणुका जी, क्या अब वक्त आ गया है कि कैपिटल पनिशमेंट के लिए कानून में कोई बदलाव है? एक विचार है, एक सोच है जो लोग कह रहे हैं, मगर ये अलग सब्जेक्ट बन जाती है। जब हम आगे बढ़ के देखेंगे तो कहने के लिए बहुत आसान होता है, मगर फिर वो सवाल उठ जाता है कि क्या एक स्टेट को हम वो अधिकार दे सकते हैं किसी का जान लेने, जब एक इंसान को हम नहीं देते हैं वो अधिकार। तो ये अलग बहस है, अलग सवाल है जो दुनिया भर में बात चलती रहती है। आज के दिन यहाँ वी हैव डेथ सेंटेंस, और रेयरेस्ट ऑफ रेयर इससे बड़ा नहीं बनता है। और एक पब्लिक सेंटिमेंट है कि इसको व्हाट यू कॉल इट, फांसी का ये कैपिटल पनिशमेंट दे। मगर आप मुझसे पूछने से मेरी अपनी व्यक्तिगत अभिप्राय ये है कि मौत इनके लिए बहुत आसान सज़ा है। इसको ज़िंदा रख के इनको समझ में आनी चाहिए कि एक महिला के साथ, एक इंसान के साथ जब हम ऐसे करते हैं तो वो ज़िंदगी भर क्या भुगतते हैं, इनको वो महसूस तो हो। Does the government plans to have any committee or panel to go into the postmortem of Gujarat? Well, it is our usual practice that reviews are held and we look into the matter and see what went wrong, where we fell short, and how to stabilize ourselves to move forward. We have to see. Equally, we tend to see why we won, how to ensure that we continue to communicate with our people. But I want to take advantage of this meet today to say a very big thank you to all our party workers
the workers who are the reed ka haddi of the party, who have put their heart and soul, and they brought us victory in Himachal, and we did make some inroads into Gujarat, and we are really very grateful to them and thankful to them and very proud of them for all the hard work that they all put in. Don't you think you ran a pretty half-hearted and passive campaign in Gujarat, shying away from taking on Mr. Modi and his politics head-on, with even your national star campaigners barely campaigning for a couple of days only? Look, it's a matter of perception. You may think that we didn't take him head-on, and I think that is what he was trying to provoke us to do. But we took a different strategy, and we believe that most of it worked. There is a certain area where there is a grey area, and we have to see which actually hurt us. So we'll look into that. But I don't think as a strategy we went wrong. It is a perception and a very stereotypical vision to say that this is what we should have done. But I think we reached the people. A lot of people were happy with what we said, and we also took a sense of what the local representatives of ours wanted and went with it. एक रिपोर्ट आई है एक मिनट, हाँ? एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि पिछले 5 सालों में 200 से ज्यादा ऐसे नेता रहे हैं जिनके ऊपर रेप के चार्जेस हैं या फिर सेक्सुअल असॉल्ट के चार्जेस हैं, और उनको अलग अलग पार्टियों से टिकट मिले और उन्होंने चुनाव लड़ा है। तो आपको नहीं लगता कि अब समय आ गया कि राजनीतिक पार्टियों को अपने अंदर भी झांकना चाहिए और ऐसे लोग? ऑफ कोर्स, इसमें कोई दो राय नहीं। जब हम फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए हम किसी के ऊपर कुछ कहते हैं तो ये उससे भी बहुत खतरनाक गलती है, और मैं सोचती हूँ कि इलेक्शन कमीशन को भी इनको देखना चाहिए कि ऐसे लोगों को क्या हम टिकट दें। आर दे कॉम्पिटेंट टू रिप्रेजेंट द पीपल? पर जैसे अपने हाथों में नहीं है। एक बहुत अच्छा सलाह बन जाती है जब इलेक्शन कमीशन भी कहेगी कि ऐसे लोग। जी, पिछले दिस इज द सिक्स्थ इलेक्शन वाजंट इट? बीजेपी 5 इलेक्शन का 5वां इलेक्शन था और 5वीं बार बीजेपी लौट के आई है। बट हु डू यू थिंक इज अकाउंटेबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द कांग्रेस इन Gujarat? I don't think we've declined. We've actually improved this time, and our vote share has actually gone up marginally. Not enough to make us really happy, but we haven't declined. And yes, we have to pull up our socks and introspect and see how to go about this scientifically. But having said that, let me tell you, it may work in Gujarat. I don't know if this sort of a strategy will work for Modi or anyone else, anywhere else in the country. So we'll have to look at that. Lessons to be learnt. जी, रिजर्वेशन इन प्रमोशन बिल के बारे में मायावती ने ये आरोप लगाया है कि सोनिया जी और कांग्रेस अगर गंभीर होती तो ये बिल पास हो जाता। इन लोगों की लापरवाही इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार है, कुछ कहना चाहेंगे? अब क्या कहें, हमें तो बहुत अफसोस लगते हैं जब हमारे लोग और हमारे नेताओं ने ऐसे कदम उठाए जो हम सब लोग चौंक उठे, और फिर भी अगर ये लापरवाही लगता है तो अपने अपने मापदंड से लोग बात करते हैं। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। हमारी इंटेंट में, ना नीति में, ना नीयत में कोई खोट है। वी आर वेरी श्योर वी कैन पुट आवर हैंड ओवर आवर हार्ट एंड टॉक अबाउट आवर कमिटमेंट। और ये तो आज ये सब कह रहे हैं, इस देश में सम समाज लाने के लिए पहले से कदम उठाती आई कांग्रेस पार्टी। इनके पहचान, एसटीज के पहचान जो हम ले आए हैं ऑन टू द शेड्यूल लिस्ट, ये सब ने हमने किया। तो आज ये कहने से ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, लोग तो सच पहचानते हैं। एक मिनट प्लीज। उसी से जुड़ा सवाल है। मायावती जी ने ये आरोप भी लगाया है कि जब सोनिया गांधी जी ने यशवीर सिंह समाजवादी पार्टी के सांसद से बिल फाड़ने से उनको रोकने की कोशिश की थी, ये खुद कांग्रेस अध्यक्ष ने नाटक किया था, ये आरोप लगाया। अब आई डोंट वांट टू रिप्लाई टू सच थिंग्स, और अगर हम भी ये कह देते तो कहाँ पहुँच जाती बात कि वो भी कोई और भी ऐसे नाटक कर रहे हैं। हम तो नहीं कहते हैं। ठीक है, ये अपने अपनी बात है। हम उन बातों से वी डोंट वांट टू जॉइन इशू। ये हमें और हमारी आत्मा हम जानते हैं।
लेकिन ये तो मैम, सीरियस एक्यूजेशन है ना मैडम कि नाटक कर रहे थे, ड्रामा कर रहे थे। हर SC/ST जो देश में हैं वो जानते हैं कि आज के दिन अगर उनकी तरक्की हुई है और समाज में लोग आए हैं तो क्या हम जो ऊंचे से ऊंचे पद हम दे रहे हैं तो ये सब नाटक ही है। तो अच्छा होगा, बेहतर कि ऐसे नाटक और चले ताकि देश में और तरक्की हो। महंगाई को लेकर के पार्टी सरकार पे दबाव बनाती है, रेप वाले मामले में पार्टी दबाव क्यों नहीं बना रही है कि कोई कड़ा कानून लाया है? नहीं, ये गलत बात है। किसने कहा कि नहीं बनाई है? इस एक मामला पे सारा पार्टी, सारे पार्लियामेंट जुड़ गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। एवरीबॉडी इज कमिटेड टू दिस और बहुत अच्छा लगा कि सब लोग जुड़ के हम लोग नए कानून हम सब देख रहे हैं कि कैसे तरीके कौन से कदम उठाएं। और आप लोग को भी मैं थैंक यू करना चाह रही हूँ क्योंकि मीडिया की सपोर्ट से बात इस व्यवहार को हम पब्लिक डोमेन में ले आ सक रहे हैं एंड ये इंफॉर्मेशन भी ऐसे ही फैलेगी। देयर इज़ नो क्वेश्चन, एवरीबॉडी इज यूनाइटेड ऑन दिस एंड आई डोंट थिंक वी शुड सस्पेक्ट एनीवन। लेकिन आपके जो कांग्रेस के सांसद संजय निरुपम वो स्मृति ईरानी के ऊपर एक टिप्पणी करते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? जी, क्या कहा? नेशनल चैनल के ऊपर जाके वो टिप्पणी कर रहे हैं स्मृति ईरानी के ऊपर, उनको कमेंट पास कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? मैम आपको बता संजय निरुपम जी ने एक नेशनल चैनल पर चर्चा के दौरान कहा है कि स्मृति ईरानी आप ठुमके लगाती थी, आपको क्या पता आपका चरित्र क्या है, आपको बोलने का अधिकार है। पर्सनल कमेंट्स किए हैं। दिस इज वेरी रिग्रेटफुल, देयर इज नो डाउट। की तरफ से मांग हुई है, आज उन्होंने कहा है कि हमारा कोई भी नेता, कोई भी प्रवक्ता संजय निरुपम का अगेंस्ट नहीं बैठेगा जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। आपको लगता है नहीं, देखिए यही चैलेंज है समाज में कि लोग समझते नहीं है कई बार कि कौन सी वाक्य इस्तेमाल करने से दैट कैन बी एंटी gender sensitivity and this is our challenge and it's very regretful जो अगर ये कहा गया, अगर, क्योंकि मैं नहीं जानती हूँ, मैंने सुना भी नहीं, कल सारा दिन मैं टीवी पे थी, तो ये अफसोस की बात है। शायद उन्होंने पता नहीं क्यों कहे, मैं उनसे I will talk to him but I don't think it's nice to talk about any person in a way that is derogatory। एक सवाल है कि हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह के अलावा और कोई भी उम्मीदवार है सीएम पद के, या वीरभद्र सिंह अकेले उम्मीदवार? ये बहुत अच्छी सवाल पूछ रहे हैं आप। आप तो जानते हैं कि हम सोचते हैं कि हर जो उम्मीदवार खड़े होते हैं वो मुख्यमंत्री बनने लायक ही होंगे और हमारा ये भी सोचते हैं कि हमारे CLP जब मिलेगी वो फैसला वो करेंगे फीडबैक लेते हुए आम जनता से, वहाँ के लोगों से, कि कौन बनने से वो खुश रहेंगे। ये हमारी तरीका है और हम इसको निभाएंगे। आई कैन नॉट स्पीक फॉर दैट। In a democracy, every MLA is entitled to become a chief ministership. Veerbhadra ji has been the leader of this talent and he has led the Congress party to victory in Himachal Pradesh and he has said categorically that this was the task assigned to him and that he has completed his responsibility. Is he the automatic choice for the chief minister? I am not authorized to speak on that. I cannot comment on who the chief minister of Himachal will be. That is a decision that will be taken by the CLP when they meet. Not by the High Command, no? High Command is CLP. She is also in the High Command. I mean, from Delhi. So High Command sits with us in consultation with the CLP and with the CWC. They sit together. Thank you.